The life cycles of houseflies, mosquitoes, and butterflies contain four stages. These stages can be studied in detail in houseflies, mosquitoes और butterflies क्या इंसेक्ट्स है. हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी में. मीन्स बी इज द राइट आंसर. We study about insects in entomology. Taxonomy is the study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups. Pharmacology is the study of drugs and their effects on the systems of human body. Biotechnology deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. क्योंकि हमसे इंसेक्ट्स के बारे में सवाल था इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है बी दैट इज एंटोमोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Kenya is the world's largest exporter of tea. Tea from Kenya is distributed to various parts of the world. The above case shows the link of biology with geography. Keywords क्या थे? Distributed to various parts of the world जिसे हमने आइडेंटिफाई किया. B is the correct answer. Biogeography deals with the study of the occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world. That's why the correct answer is B, that is geography. This case shows the link of biology with geography. Means B is the right answer. Next question. In solving a biological problem through a scientific method, a number of steps are involved. Some of these are shown below. Observations. Biologist organizes observations into data form and constructs a statement. This tentative explanation of observations is called hypothesis. Means step 1 is hypothesis. A और C shortlist हो जाते. Then experiment, procedure, material और third most important part क्या precautions. Results. After results we draw conclusions. तीनों correct options किसमें given है? Step 1 hypothesis, Step 2 conclusion और Step 3 precautions. Means C is the correct answer जिसमें हमारे पास तीनों correct options हैं. The table below shows that the rate of photosynthesis increases with an increase in the intensity of light. एक table given है, light intensity given है, rate of photosynthesis given है और हमें क्या नजर आ रहा है? यूनिफॉर्म इंक्रीज. दैट इज 2 का डिफरेंस है लाइट इंटेंसिटी में. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है? यूनिफॉर्म इंक्रीज है. दैट इज 10 का डिफरेंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द गिवन इंफॉर्मेशन? करेक्ट आंसर इज बी जहाँ पे हमें यूनिफॉर्म इंक्रीज नजर आ रहा है. यहाँ पे भी हमें यूनिफॉर्म इंक्रीज नजर नहीं आ रहा. यहाँ तो हमें डिक्रीज नजर आ रहा है और यहाँ पे भी यूनिफॉर्म नहीं. इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है जहाँ पे हमें यूनिफॉर्म इंक्रीज नजर आ रहा है. मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अबू उस्मान उमेर अल जहेज कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी बाय. उन्होंने क्या किया था? डिस्क्राइब की थी कैरेक्टरिस्टिक्स 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल की. इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी, दैट इज describing characteristics of 350 species of animals. Means D is the correct answer. Next question. Which of the following is not a rule of binomial nomenclature? हमें पहचानना है कौन सा रूल नहीं है. ऑप्शन बी, सी और डी रूल्स हैं. दैट इज scientific names of the organisms consist of two parts. The species name of the organisms are written using small letters only. The scientific names of the organisms are italicized. ये तीनों क्या है? रूल्स हैं. एक्सेप्ट ऑप्शन ए दैट इज our scientific names of the organisms are written in Greek only. ग्रीक ओनली में होना जरूरी नहीं है. इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुत्सु is a plant from Japan. It was brought to the United States of America to help stop soil erosion. Kudzu is now a huge problem in some southern states. The plant grows very fast and can completely take over an area and outcompete native plants for space and sunlight. The above case is an example of
कुड्ज़ू जापान का नेटिव प्लांट है, यूनाइटेड स्टेट का नहीं। कुड्ज़ू को जब जापान से अमेरिका में लाया गया सॉइल एरोजन को बचाने के लिए, तो कुड्ज़ू की वजह से कुछ स्टेट्स में, कुछ साउदर्न स्टेट्स में ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब ये किसकी एग्जाम्पल है? चूंकि कुड्ज़ू नेटिव प्लांट नहीं यूनाइटेड स्टेट का, उसको जापान से लाया गया, तो ये एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। The above case is an example of introduction of new species. Which of the following could be seen using light microscope? तो लाइट माइक्रोस्कोप से सिर्फ और सिर्फ हमें बैक्टीरियल सेल्स नज़र आते हैं। डीएनए और इंडिविजुअल एटम्स एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ओनली, दैट इज ओनली बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अ bilayered lipids in the cell membrane is to provide elasticity and fluidity। ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे आंसर्स जो है वो रॉन्ग है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी है। अ प्लांट टिश्यू इज फाउंड विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लेक्सिबल है, इलोंगेटेड सेल्स है, अनइवन सेल वॉल्स है, और कॉर्टेक्स ऑफ यंग हर्बिशियस स्टेम्स में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? किसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इसका करेक्ट आंसर है कॉलेनकाइमा टिश्यूज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शोज एन एनिमल टिश्यू, मसल टिश्यूज नजर आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एनिमल? ये स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल टिश्यूज है, ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री। द डायग्राम बिलो शोज द सेल साइकिल, हमें एक सेल साइकिल नजर आ रहा है। W इज G1, X इज S फेस और Y जो है G2 फेस है। Which of the following may happen if the stage label X does not take place? Means S now। तो हमें पता है S में DNA डबल होता है, DNA के मॉलिक्यूल्स डबल होते हैं, क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, मीन्स रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, तो वो नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, सिंथेसिस ऑफ DNA वुड स्टॉप। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन बिलो, हमें ये स्टेज बताना है माइटोसिस का। यहाँ पे ना हमें क्रोमोसोम से ना एक दूसरे दूर दिख रहे हैं, अपार्ट दिख रहे हैं। A4 एनाफेज, A4 अपार्ट, तो मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स इन ह्यूमन? नर्व सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, तो मीन्स ए और डी रॉन्ग हो गया, क्योंकि नर्व सेल्स आर डिप्लॉइड। सेम यहाँ पे एक्स सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो ये डिप्लॉइड के कॉलम के अंदर लिखे, तो मीन्स ये दोनों भी इनकरेक्ट हो गए और ये दोनों भी इनकरेक्ट हो गए, तो जो राइट आंसर था स्पर्म सेल्स आर हैप्लॉइड और स्किन सेल्स आर डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड मियोटिक डिवीजन मेनली इंश्योर्स दैट, मतलब सेकंड मियोटिक डिवीजन के एंड में हमें क्या मिलता है? हमें पता है 4 डॉटर सेल्स मिलती है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड है। The conversion of insoluble fibrinogen into fibrin threads is carried out by enzyme thrombin, which works in the presence of vitamin K only. Here, vitamin K is acting as an, they are asking कि जो एंजाइम है वो विटामिन के की प्रेजेंस में ही काम करता है, तो यहाँ पे विटामिन के कैसे काम कर रहा है? यहाँ पे विटामिन के कैसे एक्ट कर रहा है? विटामिन के यहाँ पे एज अ को फैक्टर एक्ट कर रहा है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी, एज अ को फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, optimum temperature of an enzyme can be described as a temperature at which, optimum temperature को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी एंजाइम के? ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम रेट पे होती है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी, दैट इज द एंजाइम एक्टिविटी इज एट मैक्सिमम रेट। मीन्स एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम रेट पे होती है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। The ability of ATP to release energy lies in its 3 phosphate groups। जब वो अपने फॉस्फेट ग्रुप को लूज करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस आर सिमिलर इन अ वे एज दे बोथ जनरेट एनर्जीज। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट दोनों जनरेट करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है, जनरेट एनर्जीज। Takes in mitochondria make use of oxygen, release water, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होते हैं, एनारोबिक में नहीं होते, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन सी? इनमें से क्या करेक्ट है? फंक्शन हमें पता है विटामिन सी का होता है कोलेजन फॉर्म्स करना, रोडोप्सिन फॉर्म करना विटामिन ए का फंक्शन होता है, तो इसलिए हमारे बी और सी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। और बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन सी को हासिल करने का? ऑरेंजेस और गावा, तो इसलिए जो हमारा सही आंसर था बी। उसके डाइटरी बेस्ड सोर्स है ऑरेंजेस और गावा और उसका फंक्शन है कोलेजन को फॉर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू पेप्सिन व्हेन इट इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन अलोंग विथ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड? स्टमक से जब पेप्सिन एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच होती है, एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, तो वहाँ पे पेप्सिन डीनेचर हो जाता है, कंप्लीटली एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए होती है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है पेप्सिन इज डीनेचर कंप्लीटली। पेप्सिन इज कन्वर्टेड बैक टू पेप्सिनोजीन, रॉन्ग आंसर। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, नो ये भी गलत था। पेप्सिन डिस्ट्रॉय द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं ये भी गलत ऑप्शन था। जो करेक्ट ऑप्शन था वो ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज फॉलोइंग सिम्टम्स: पेन इन एब्डोमिनल रीजन, डिफिकल्टी इन एक्सपेलिंग फीसेस, इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट। आपने आसानी से ये सारे सिम्टम्स को देख के पहचान लिया होगा कॉन्स्टिपेशन है। Which of the following is correct about the condition of guard cells in stoma at the time of transpiration? कंडीशन ऑफ गार्ड सेल टर्जिट होती है और कंडीशन ऑफ स्टोमा ओपन होती है, तो हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शंस किस में थे? ऑप्शन ए में, इसलिए जो हमारा सही जवाब है ए, दैट इज कंडीशन ऑफ गार्ड सेल टर्जिट एंड कंडीशन ऑफ स्टोमा ओपन। Next question. Lysosomes are most abundant in those cells which perform phagocytic activity. Which of the following cells will have most lysosomes? लाइसोसोम्स उन सेल्स में ज़्यादा होते हैं जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड डिफेंस टू आवर बॉडी। ठीक है, दे प्ले द रोल ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी, दैट इज वाइट ब्लड सेल। Which blood vessels collect blood from lower limbs of the human body and bring it to the heart? पूछने कि कौन से ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो लोअर लिम्ब से ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसको हार्ट में लेके जाते हैं, तो उसका सही जवाब है डी, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। डोर्सल एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हेपेटिक आर्टरी में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हेपेटिक आर्टरी लीवर को ब्लड सप्लाई करती है और डोर्सल एओर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। फीमोरल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, बट फीमोरल वेन क्या करती है? अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा को देती है और इंफीरियर वेना केवा वो ब्लड हार्ट तक लेके जाता है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हमसे क्या है, ब्रिंग इट टू दी हार्ट, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वो डी, दैट इज इंफीरियर वेना केवा।